ஆயுர்வேதம் ஒரு பொக்கிஷம் நம் ஆயுள் நீட்டக்கும் அற்புதம். டாக்டர் ஸ்ரீவர்மாஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனல்ல பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய ஹிந்தி ஸ்பீச்சஸை தமிழாக்கம் செய்து வெளியிட்டு இருக்கோம். அதற்கு பெருமளவுல மக்கள் ஆதரவு இருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப நன்றி. போன வீடியோலயே சொல்லியிருந்தீங்க, இதை தொடர்ச்சியாக செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. நாங்களும் தொடர்ச்சியாக செய்ய போகிறோம். ராஜஸ்தான்ல மோடி என்ன பேசினார் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து ராஜஸ்தான் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு உடனடியாக வெறும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளேயே குஜராத்துக்கு போயிட்டாரு. குஜராத்ல சானந்த் அப்படிங்கிற பகுதியில ஒரு மிகப்பெரிய செமி கண்டக்டர் பிளான்ட்டை தொடங்கி வச்சிருக்காரு. அப்போதான் நிறைய பேசியிருக்காரு. அதுல முக்கியமா ஹைலைட்டா சொல்ல வேண்டியது, நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஒரு செகண்ட் ஸ்பீச்சை நிறுத்திட்டாரு. நீங்களே பாருங்களேன். कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी। 20 करोड़। आपको लगता होगा कि मोदी जी ने गलती कर दी, 20 लाख को 20 करोड़ बोल दिया। इधर ताली बजाने में देर हो गई। 20 करोड़। இது ஏன் நிறுத்தினாரு தெரியுமா? இந்த இடத்துல இருந்து, இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்ல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 20 கோடி செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால மக்களுக்கு ஒரு செகண்ட் 20 கோடி தான் சொன்னீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது நம்பர் சொன்னீங்களா? 20 லட்சத்துக்கு பதிலா 20 கோடி நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க நினைச்சீங்களா? இல்ல, நான் சொன்னது 20 கோடி தான் என்று சொன்னோன்னு அகைன் அந்த அரங்கமே வந்து கைத்தட்டலால நிரம்பியது. 20 கோடிங்கிறது அப்படியே நின்று விட போவது கிடையாது. இந்த பிளான்ட்ல இருந்து 500 கோடி செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் ஒரு ஆண்டிற்கு நம்ம உற்பத்தி செய்ய போகிறோம் என்று மோடி அவர்கள் ஒரு லட்சியத்தையும் நிர்ணயிச்சிருந்தாரு. और मुझे बताया गया, आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है। यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे। ये भरोसा इस बात का भी है कि सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम तेज गति पकड़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप, ब्रिक बाय ब्रिक और अब चिप बाय चिप मैं सीजी सेमी की पूरी टीम को, राज्य सरकार और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ஸோ பேசிக்கலி செமிகண்டக்டர் பத்தி இப்போ நிறைய விழிப்புணர்வு வந்து விட்டது. நம்ம இந்தியா வந்து செமிகண்டக்டர் ப்ரொடியூசிங்ல ரொம்ப நாளாவே பின்தங்கிட்டு இருந்தோம். 20ஆம் நூற்றாண்டினுடைய பிற்பகுதியிலேயே பாத்தீங்கன்னா இந்த தாய்வான் போன்ற குட்டி குட்டி நாடுகள்லாம் செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில கொடி கட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா இந்தியாவுடைய ஆட்சியாளர்களுடைய இந்த மெத்தன போக்குனால, அலட்சியத்தால இந்தியா செமிகண்டக்டர்ல பின்தங்கியது. இந்த சிப்ஸுங்க, எல்லா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்குள்ளேயும் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இயங்குவதற்கு ஒரு சிப் இருக்கும். அதுதான் செமிகண்டக்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த செமிகண்டக்டர் ப்ரொடியூசிங்ல இந்தியா வந்து இனியும் பின்தங்காது. நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரத் செமிகான் ப்ராஜெக்ட் என்று மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட், இந்தியா செமிகண்டக்டர் இண்டஸ்ட்ரியில கோலோச்ச வேண்டும் என்று அவருடைய முயற்சியால நாடு முழுக்க பல்வேறு செமிகண்டக்டர் பிளான்ஸ் இப்போ வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு. साथियों, बीते वर्षों में हमने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत किया है। आज भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ चुका है। साथियों, हमारा प्रयास सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट में आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास कंपोनेंट्स में भी आत्मनिर्भरता की तरफ है और इसलिए अब भारत का अगला कदम उठ रहा है
हम केवल मोबाइल नहीं बनाएंगे, हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बनाएंगे, हम उन चिप्स का निर्माण भी करेंगे जिनसे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया चलती है। और यही हमारी रणनीति है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी वैल्यू चेन भारत में होगी। यह विकसित भारत का रोड मैप है। यही मेक इन इंडिया का अगला चरण है। அவர் சொல்றாரு, எனக்கு எதையுமே சிறுசா யோசிக்க தெரியாது, நம்மளுடைய கனவுகள் எப்பவுமே ரொம்ப பெருசா இருக்கணும். இப்போ இல்லைங்க, 2018-19 அப்போலேருந்தே மோடி அவர்கள் சொல்லிட்டு இருப்பது, உலகத்திலேயே மிகவும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடு தங்களுடைய கனவுகள் ரொம்ப சிறியதாக இருக்கக்கூடாது. இந்த நாட்டினுடைய கனவுகள் பெரிய பெரிய கனவாக நாம் கனவு காண வேண்டும். நம்மளுடைய லட்சியம் ரொம்ப வானத்தை நோக்கி நம்ம ஏணியை போடணுங்கிற மாதிரி நம்ம லட்சியம் மிகவும் உன்னதமாக இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு. அதையே இப்போ மீண்டும் சொல்லி, என்னுடைய விஷன் ரொம்ப பெருசு, அதனால தான் எதை செய்தாலும் மிகப்பெரிய அளவில் செய்வேன். ஸ்டாச்சு, ஒரு சாதாரண ஸ்டாச்சு செய்யறதா இருந்தாலுமே மிக உயரமான ஸ்டாச்சுவா நான் கட்டுவேன். எதை சொல்றாருன்னு தெரியுதா? குஜராத்ல இந்தியாவுடைய இரும்பு மனிதர் திரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவர்களுடைய ஸ்டாச்சு இருக்கு இல்லையா, அதை தான் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு. ஸ்டாச்சு முதற்கொண்டு எனக்கு எல்லாத்துலயும் பெருசா வேணும். साथियों, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकल मिनरल्स और हाईटेक मटेरियल्स में आत्मनिर्भरता। और अभी सुबैया जी बीच बीच में गुजराती भी बोलते थे। उन्होंने गुजराती कहावत सुनाई, निशान चूक माप पर नहीं माप नीचू निशान। और इसलिए मेरा भी वही स्वभाव है, मैं लक्ष्य छोटे नहीं रखता, मैं सोच छोटी नहीं रखता। अगर स्टैच्यू भी बनाता हूं तो दुनिया में सबसे बड़ा बना के रख देता हूं। और जैसा सुबह जी ने कहा, सुनते हो ना विनोद, काम बोलता है। काम बोले थे। ये जो प्रोग्रेस दिख रही है, ये जो अचीवमेंट दिख रहे हैं, इससे जुड़ी सप्लाई चेन को मजबूत करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। आज भारत इसी दिशा में व्यापक प्रसार कर रहा है। हमारा लक्ष्य है कि चिप डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग तक का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित हो। और भारत चिप तो बनाएगा ही, भारत का युवा मेड इन इंडिया चिप पर एआई, रोबोटिक्स और नेक्स्ट जेन टेक क्रांति को भी गति देगा। मुझे भारत की युवा शक्ति पर, भारत की युवा टैलेंट पर अटूट विश्वास है। मेरे देश की युवा शक्ति और उनके सामर्थ्य पर मेरा पूरा भरोसा है। இந்தியாவோட செமிகண்டக்டர் துறையில நடக்கக்கூடிய இந்த வளர்ச்சி இருக்கு இல்லையா, இது ஐசோலேஷனா ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக பார்க்கக்கூடாது. கடந்த ஒரு தசாப்தமாக எங்களுடைய அரசாங்கம் இதற்காக பல்வேறு முயற்சிகளை நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு இந்தியா பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே 2வது மிகப்பெரிய மொபைல் போன் மேனுஃபேக்சரரா இருக்கும். அதே மாதிரி இந்தியா தான் உலகத்திலேயே 2வது மிகப்பெரிய மொபைல் போன் எக்ஸ்போர்ட்டர். ஸோ மேனுஃபேக்சரும் நம்ம தான், எக்ஸ்போர்ட்டரும் நம்ம தான். அதுக்கு தான் ஒரு அனாலஜி ஒன்று சொல்றாரு. என்ன, நீங்க குஜராத்லேருந்து டெல்லிக்கு அமிச்சிங்க, நான் இந்தியாவிலேருந்து மொபைல் போன்ஸை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிட்டு இருக்கேன், இதுதான் நாங்க கொண்டு வந்த மாற்றம் என்று மோடி அவர்கள் தனக்கே உரித்தான ஒரு பாணியில அவர் பேசியது அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்தது. आज भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के इस उभार से सभी उत्साहित हैं।
देश दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। अक्सर लोग इसको आइसोलेशन में देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग का विस्तार अचानक नहीं हुआ है। ये पिछले एक दशक में भारत में आई इलेक्ट्रॉनिक क्रांति का नेक्स्ट स्टेप है। साथियों, हमने शुरुआत मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से की। एक समय था जब भारत अपनी जरूरत से भी अधिकांश स्मार्टफोन, ज्यादातर स्मार्टफोन हम विदेश से ही मंगाते थे। और आज भारत में मोबाइल फोन प्रोडक्शन पहले के मुकाबले 33 गुना ज्यादा हुआ है। आज भारत, यानी जो 2014 के पहले मोबाइल फोन बाहर से लाता था, आपने मुझे जब गुजरात से दिल्ली भेजा तो भारत मोबाइल दुनिया में भेज रहा है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्टर भी है। இப்பதான் இந்தியாவோட இளைஞர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் சொல்றாரு மோடி. இது வரைக்கும் எத்தனையோ புரட்சிகள் வந்திருக்கு. அதாவது வேலை வாய்ப்பு செக்டார் இருக்கு இல்லையா, அதுல நிறைய புரட்சிகள் ஏற்பட்டிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி ஐடி புரட்சி ஏற்பட்டது. அப்பொழுது இந்தியாவுடைய இளைஞர்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பன் ஆச்சு. இந்தியாவோட இளைஞர்கள் தே ஓன்ட் ஐடி, ஒட்டுமொத்தமாக ஐடியை ஓன் பண்ணாங்க. ஸோ அப்படி நிறைய வாய்ப்புகள் இனிமேலும் உங்களுக்கு வரவிருக்கு. இப்போ ஏஐ அண்ட் செமிகண்டக்டர் ரெவல்யூஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த எரால தான் உங்களுடைய திறமைகளை நீங்க இன்னும் வளர்த்துக்கணும். திறமை நல்லா வளர்த்துக்கோங்க, உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் காத்திருக்கு. இளைஞர்களுக்கு அவர் சொல்றது, இந்தியாவோட இளைஞர்களுக்கு இனிமே தான் அதிகமான வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடைக்க போகிறது என்பதையும் அவர் குறிப்பிட்டாரு. देश की युवा शक्ति से एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब भी दुनिया में कोई नई औद्योगिक क्रांति आती है तो सबसे अधिक अवसर युवाओं के लिए पैदा होते हैं। एक समय आईटी क्रांति आई तो उसमें लाखों भारतीय युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का मौका मिला। फिर स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का दौर आया, उससे भी लाखों युवाओं को नए अवसर मिले। ये जो सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन का दौर है, ये भी अनगिनत नए अवसर लेकर के आ रहा है। रिसर्च और डिजाइन से लेकर स्टार्टअप इनोवेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट तक अनेक अवसर है। साथियों, जरूरत नई स्किल की है, नए आइडियाज की है। ஸோ நிறைவாக பாரத பிரதமர் அவரோட இன்ட்ராக்ஷன் நினைவு கூர்றாரு. யாரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணாருன்னா, அந்த செமிகண்டக்டர் பிளான்ட்ல பணிபுரியக்கூடிய பெண்கள் அனைவருமே, இந்த எல்லா பெண்களுமே பாத்தீங்கன்னா சாதாரண கிராமத்துல இருந்து தான் இதுக்கு முன்னாடி யாருமே படிப்புக்காக வெளியிலேயே போலையாம். அவர்களோட நல்ல இன்ட்ராக்ஷன் என்பதை மேடையிலேயே பதிவு பண்றாரு. अब मायने ये रखता है कि आपके पास नया आइडिया है या नहीं, आपके पास कुछ नया सीखने, नया करने का जज्बा है या नहीं। मैं आज जिन बेटियों से मिला, झारखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश, कोई केरल से, कोई छत्तीसगढ़ से, और जय जोहार से ही हमारी बात शुरू हुई, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहा हूं तो मुझे पता है। उन बेटियों ने जिस तेजी से चीजों को सीखा है और जिस तरीके से वो चीजों को वहां कंडक्ट कर रही थी, गर्व होता है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
साथियों, आने वाले समय में एआई आपके सामने नई स्किल्स, नई एक्सपर्टाइज का पूरा संसार खोल देने वाली है। इसलिए भारत के युवाओं को अभी अवसर गंवाना नहीं है। और मैं नौजवानों आपको कहता हूं, आइडिया आपका, साथ मेरा। ஸோ பாரத பிரதமர் அந்த செமிகண்டக்டர் பிளான்ட்ல பணிபுரியர்களோட நடந்த இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த உரையாடல் தான் நேற்றுக்கு சோஷியல் மீடியால அவ்வளோ வைரலா பரவுச்சு. அந்த ஒவ்வொருத்தரும் சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எங்களையே அனுமதிக்காம இருந்தாங்க, ஆனா நாங்க போய் வெளிநாடுகள்ல படிச்சுட்டு இப்போ செமிகண்டக்டர் பிளான்ட்ல வேலை பார்க்கறத பார்த்துட்டு எங்களுடைய ஊர்ல எங்களுடைய நண்பர்கள் எல்லாமே நாங்களும் வரோம், நாங்களும் கத்துக்கிறோம், எங்களுக்கும் வேலை வாங்கி கொடு அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க என்று சொன்னதை கேட்டுட்டு மோடி அவர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். मैं गांव की पहली बेटी हूँ, मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ. हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए. जय जोहार। जोहार सर, मेरा नाम पूनम कुमारी है, मैं झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मेरे घर में सिर्फ मेरी मम्मी है और एक मेरी बहन जिसकी शादी हो चुकी है. मैंने अपनी 12th की पढ़ाई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विरनी से की है. उसके बाद मैंने ITI किया. ITI करने के बाद प्लेसमेंट हुआ CG सेमी में. यहाँ आने के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आउट ऑफ कंट्री जाके मजाक उड़ाते हो कि ITI क्या होता है? पहले तो लगता था कि हाँ गांव की लड़की है, बाहर जाके पढ़ रही है. रांची में जब मैं थी तो कि बाहर जाके पढ़ रही है, कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ही जा रही है बस टाइम पास करने के लिए. लेकिन नहीं, अब उन्हें लगता है कि हाँ एक्चुअल में कुछ कर रही है. आप लोगों का एक वीडियो तो बड़ा पॉपुलर हुआ था. ऐसा நடுவில் ஒரு லைட்டர் நோட்ல ஜார்க்கண்ட்லேருந்து வந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு, அவங்களுக்கு ஒரு 24-25 இயர்ஸ் தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்றாங்க, ஒரு வருஷமா குஜராத்ல இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொன்னதற்கு, எப்படி இங்க வந்து மீத்தி தால், அதாவது ரொம்ப இனிப்பான தால் இங்க இருக்குமே, உங்களோட கியூசின் வேற எங்க கியூசின் வேற, ரெசிபிலாம் மாறுமே, அடாப்ட் ஆயிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டதற்கு எஸ் சார் அடாப்ட் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எந்தெந்த ஊர்ல எப்படி எப்படிலாம் கியூசின் இருக்கு, உணவு பழக்க வழக்கம் எப்படி இருக்கு என்று அனைத்தையுமே பாரத பிரதமர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு என்பதுதான் நமக்கு இதுல தெரிய வருகிறது. जोहार सर, मेरा नाम प्रियंका धनवार है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम जिले की रहने वाली हूँ. मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे भैया हैं और मैंने भी अपनी पढ़ाई ITI तक करी हुई है. उसके बाद मैं यहाँ CG सेमी में आई और हमें भी मतलब मुझे भी जाने का मौका मिला मलेशिया ट्रेनिंग के लिए है. उसके बाद फिर यहाँ पे अभी मैं ऑपरेटर के रूप में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अभी काम कर रही हूँ. गुजरात में कितने साल हुए आप लोगों को? सर 1 साल. 1 साल हुआ. तो मीठी दाल खाना तो बड़े परेशानी होती होगी, तब मीठी दाल की आदत हो गई. गुजरात में क्या देखा आप लोग? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गए थे? नमस्ते सर, मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ. पहली बार गुजरात में आए? जी सर. कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि गरम है ये तो. हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर. नमस्कार सर, मेरा नाम सत्यम सिन्हा है और मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर. तो योगा वगैरह करते हो नहीं करते? सब करते हैं सर, योगा जिम तो सब. मुंगेर वालों ने तो योगा सिखाना चाहिए सबको. यस सर. नमस्कार सर, मेरा नाम शिवानी विके और मैं मध्य प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बालाघाट. आप में से मैं सुनना चाहूंगा, यहाँ 1 साल रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा काम आपको लगता है जो बड़ा आनंद आ गया, कुछ जीवन में किया, आपके दोस्त पूछते होंगे जब जाते होंगे गांव में? मेरे गांव में ऐसा है कि मैं गांव की पहली बेटी हूँ जो बाहर आके मतलब अदर स्टेट पे आके जॉब कर रही हूँ. मेरे गांव में कोई भी मतलब किसी भी फैमिली की बेटी बाहर पढ़ाई नहीं करती क्योंकि भेजने को नहीं देखते, घर के परिवार वाले बाहर भेजने को नहीं देखते. लेकिन मुझे लगता है आज जब मैं घर जाती हूँ, मतलब कभी घर जाती हूँ, तो मुझे देख के सब लोग अचंभा रहते देखने हैं. के लिए आते होंगे. हाँ, बोलते हैं कि कहाँ रहती है, कहाँ पढ़ाई करती है. तो मैं बोलती हूँ कि मेरी जॉब अभी CG सेमी में है, बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ. मैंने कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ, वो लोग बहुत खुश होते हैं. वो सोचते हैं कि लड़की कुछ तो कर रही है अपनी लाइफ में, सेल्फ डिपेंड है. मुझे पूछते हैं मेरे फ्रेंड्स लोग, बोलते हैं कि मैं भी आ सकती हूँ क्या, मेरा भी एडमिशन हो सकता है क्या? बोली हाँ क्यों नहीं, आइए जॉब कीजिए. वो लोग बहुत खुश हैं. CG सेमी में हमें प्लेसमेंट मिला और यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए हमको मलेशिया भेजा गया 1 महीना के लिए. वहाँ पे हमको प्रोसेस क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है और क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है. तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता होगा? यस सर. फिर लेकिन क्या किया? हमारे जो पहले गए थे ना इंजीनियर सीनियर थे, उन लोग हमको बहुत हेल्प किए. अच्छा.
फिर वहाँ से आने के फॉरेन बाद रिटर्न हो गए तो गांव वाले क्या कहते हैं? गांव वाले बहुत अच्छे हैं। उन लोग बोलते हैं जब जाते ना यहाँ से तो बोलते हैं कि अभी तुम क्या करती है और कैसे वहाँ पे गई, अभी कैसा लगता है। उन लोग भी बोलते हैं हमारी फ्रेंड लोग कि हमको भी लेके चलो। अच्छा, सब लोग आना चाहते हैं? यस सर। तो भैया- बोलते हैं कि यहाँ पे आने के लिए पहले पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ। तो अपना कॉलेज का इंफॉर्मेशन दिए हैं और दो लड़की आ भी चुकी है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अवसर मिला है और गुजरात जैसी भूमि मिली है और इतनी बढ़िया 100 साल से भी पुरानी कंपनी में आपको काम करने का अवसर मिला है, तो आप लोग भी खूब प्रगति कीजिए। धन्यवाद। ஸோ இந்தியாவோட செமிகண்டக்டர் மிஷன் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல போகிறது என்பதில் மாற்று கருத்தே இல்லை. அதற்கான ஒரு கிளியரான ரோட் மேப்பும் இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய மோடியினுடைய உரைகளை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்து வெளியிட முயற்சி செய்கிறோம். தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள். வணக்கம். வந்தே மாதரம். உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் ராஜவேல் நாகராஜன். பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.